चलो, so let's go for Hamiltonian of a system. Okay, so let's go for Hamiltonian. So what is Hamiltonian of a system? So Hamiltonian is actually function of generalized coordinate, generalized momentum and time. Okay, so this is your Hamiltonian of a system. Generalized coordinate, generalized momentum and time. Okay, and this Hamiltonian is defined as summation over qi dot pi summation over I minus Lagrangian of a system, and that value is qi dot and t. This is your Hamiltonian of a system. Okay, now whenever you will write Hamiltonian, generalized coordinate and generalized momentum must be there. Okay, और एक बहुत बड़ी गलतफहमी यह है कि हैमिल्टोनियन लिखते समय काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिख दो. डोंट डू दिस थिंग. ठीक है, दिस इज रॉन्ग. Hamiltonian is just a formulation which is generalized, which is function of generalized coordinate, generalized momentum and time, and which is actually generalized, actually this one. Agreed? Actually this is the thing. Okay, it may be sometime come to total energy plus total energy of a system, but not always true. This is described by the Hamiltonian. क्वांटम में भी यही हैमिल्टोनियन है. दैट इज द सेम हैमिल्टोनियन. नहीं होगा, बिकॉज इट इज कंजर्वेटिव सिस्टम, देन योर हैमिल्टोनियन इज टोटल एनर्जी. क्योंकि आप कंजर्वेटिव सिस्टम में बात कर रहे हो, आपका पोटेंशियल जो भी ले रहे हो, दैट पोटेंशियल इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो व्हाई योर टोटल हैमिल्टोनियन इज टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. Hamiltonian is not necessarily total energy of a system. That is different issue, है ना? So this is your Hamiltonian. Agreed? So this is Hamiltonian, and that is generalized velocity corresponding momentum. ठीक है? So this is your Hamiltonian of a system. Now, if you are just going for DH, अभी मैं दिखा देता हूं, एक प्रॉब्लम करूंगा तो आंखें खुल जाएगी, है ना? This DH is given by summation over dqi dot pi summation over I minus t, sorry, plus summation over qi dot dpi minus dl. लिखेंगे ऐसे. सो व्हाट विल हैपन, इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं समेशन ओवर डेल एच अपॉन डेल क्यू आई, एंड दिस इज डी क्यू आई. ठीक है, प्लस समेशन ओवर आई डेल एच अपॉन डेल पी आई डी पी आई. लिखते जाओ, करते जाओ, इसमें सोचना क्या है. हाँ, प्लस डेल एच अपॉन डेल टी डी टी. ठीक है, ओके. एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू summation over I dqi dot pi plus summation over I qi dot dpi minus
del L upon del QI dQi minus del L upon del QI dot dQi dot minus del L upon del T. ठीक है? Okay. Now, what will be del L upon del QI dot? That is Pi. Del L upon del QI dot is what? Pi. And what is del L upon del QI? QI dot होगा. What is del L upon del QI? Pi dot. That is what? Pi dot. Pi dot. ठीक है? So you have basically del L upon del QI dot is equal to Pi, and del L upon del QI is equal to minus Pi dot. Sorry, that is Pi dot, not minus, that is Pi dot. So कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? dt, हाँ, that is dt, that is dt. ठीक है? So आप अगर देख रहे हो तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? dqi pi. So dqi क्या हो रहा है? dqi dot and pi. This thing is cancel out. हो रहा है ना? So ये दोनों कैंसिल हो रहा है. This and this is cancel out. So अब हम क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ इक्वेट कर रहे हैं इंडिविजुअल जनरलाइज कोऑर्डिनेट को. इंडिविजुअल जनरलाइज कोऑर्डिनेट. ठीक है? सो dqi को कोफिशिएंट दोनों तरफ लोगे. बताओ तो क्या आ रहा है? बताओ. What is coefficient of dqi on both sides? Very good. So you have del h upon del qi is equal to what? Minus pi dot. आ रहा है ये? Okay. Next, del h upon del pi, del h upon del pi is equal to what? qi dot. ठीक है? Okay. And next is what? Del h upon del t is equal to minus del L upon del T. ठीक है? So you have these three equation mainly for the ith coordinate. So this is popularly known as what? Hamiltonian equation of motion. इसे आप क्या कह रहे हो? Hamiltonian equation of motion. This is basically known as Hamiltonian equation of motion. ठीक है? Now, the good part of Hamiltonian is that if you will take the total derivative of Hamiltonian dh upon dt, the total derivative of Hamiltonian dh upon dt is equal to actually partial derivative of Hamiltonian. आप किसी भी Hamiltonian में अगर देखोगे, this is only function जहां पर टोटल डेरिवेटिव किसके इक्विवेलेंट है? पार्शियल डेरिवेटिव के इक्विवेलेंट. चाहो तो प्रूफ कर सकते हैं, है ना? So what is your Hamiltonian? Your Hamiltonian is a function of generalized coordinate, generalized momentum and time. Always it is function of generalized coordinate, generalized momentum and time. अगर मैं dh upon dt की वैल्यू देखता हूं, क्या हो जाएगा?
डेल एच अपॉन डेल क्यू आई, और ये क्या हो जाएगा क्यू आई डॉट, ठीक है, प्लस डेल एच अपॉन डेल पी आई डॉट, ठीक है, और प्लस डेल एच अपॉन डेल टी डी टी बाई डी टी इज 1, ठीक है। नाउ व्हाट इज डेल एच अपॉन डेल क्यू? माइनस पी आई डॉट, सो यू हैव माइनस पी आई डॉट क्यू आई डॉट, ठीक है। एंड व्हाट इज डेल एच अपॉन डेल पी आई? क्यू आई डॉट पी आई डॉट। बहुत मजेदार डेफिनेशन है ये, है। एंड फर्स्ट इज व्हाट? डेल एच अपॉन डेल टी, सो दिस टर्म इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ये जो टर्म है वो इक्विवेलेंट है। सो what you have wonderful expression, and this is valid only for Hamiltonian in general, that total derivative of Hamiltonian is actually partial derivative of Hamiltonian with respect to time. प्रूफ कर दिया ना, ठीक है। अभी बताएगा, ठीक है। Now in general, when we are talking about any conservative system, यहां तक हो गया? कीजिए, जल्दी कीजिए, है ना। साथ साथ कैलकुलेशन करने की आदत डालिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया? चलो, सो इन जनरल अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो या कोई भी क्वांटिटी हो, वो अगर कांस्टेंट है तो उसका मतलब क्या होगा? डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। सपोज एफ कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब तक टोटल डेरिवेटिव 0 नहीं होगा तब तक आप वो नहीं कर सकते हो कि वो चीज आपका कांस्टेंट है। जैसे आपने अभी तुरंत देखा था थोड़ी देर पहले लैग्रेंजियन में, व्हेन यू हैव dp अपॉन dt इज इक्वल टू 0, देन योर p इज कांस्टेंट। देखा था, है ना। टोटल डेरिवेटिव वाज इक्वल टू 0, पार्शियल डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल डेरिवेटिव। बट हियर hence your total derivative is equal to partial derivative. That means only if your Hamiltonian is explicit function of time, then then Hamiltonian is not conserved. अदरवाइज सारे फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको टोटल डेरिवेटिव देखना होगा या फिर पार्शियल डेरिवेटिव देखना पड़ेगा? टोटल। इन जनरल यू हैव टू सी अबाउट द टोटल डेरिवेटिव ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। टोटल डेरिवेटिव ऑफ अ सिस्टम के बारे में आप बताओगे कि अगर टोटल डेरिवेटिव 0 है, कल की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, पूरी की पूरी सिमेट्री हम यहां से डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। So when your total derivative is equal to 0, then only that quantity is conserved. But beautiful part of Hamiltonian is that it is, if it is partial derivative with respect to time is equal to 0, you can say your Hamiltonian is conserved during the motion. Okay, so here we have, if del h upon del t is equal to obviously माइनस डेल एल अपॉन डेल टी, दोनों तो इक्वल है। मींस आप लेग्रेंजियन से भी देख करके आप बता सकते हो कि इफ योर लेग्रेंजियन इज नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, देन योर हैमिल्टोनियन इज व्हाट? कंजर्व
in general. ठीक है? Okay, so from here you have total derivative with the Hamiltonian की जगह partial derivative से भी काम चला सकते हो. ठीक है? So if Hamiltonian is not explicit function of time, not explicit function of time, then del H upon del T is equal to 0. This implies dH upon dt is equal to 0. This implies Hamiltonian is conserved. And if your potential is not a function of velocity in general, then you can identify that your Hamiltonian is identified as total energy of a system. You can identify. ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो टोटल एनर्जी है या नहीं है. ओके, तभी आप उसे एनर्जी कह सकते हो इन जनरल. और क्वांटम मैकेनिक्स में हम इन जनरल जितने भी हैमिल्टोनियन को सॉल्व करते हैं, बोथ ऑल आर व्हाट, कंजर्वेटिव सिस्टम. सो व्हाई योर टोटल एनर्जी की आइगन वैल्यू क्या मिल रही है? आपकी एनर्जी मिलती है. ठीक है? सो हैमिल्टोनियन इज वन ऑफ फॉर्मुलेशन. हैमिल्टोनियन क्या है? एक तरह का फॉर्मुलेशन है जिसके बारे में हम बात करते हैं. आपका मिथ अभी खत्म हो जाएगा कि हैमिल्टोनियन को t प्लस वी हमेशा क्यों नहीं लिख सकते हैं. फॉर लेट्स गो फॉर दिस. एक प्रॉब्लम करो, अभी समझ में आ जाएगा. देखो, क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो, है ना. इफ हैमिल्टोनियन H, if Hamiltonian H is explicit function of time, if Hamiltonian H is explicit function of time and T is kinetic energy, V is potential energy of a system. T is kinetic energy and V is potential energy of a system. Then which one of the following is correct? Del H upon del T is equal to del T upon del T, del V upon del T. Del H upon del T upon del T minus del V upon del T, del H upon del T minus del T upon del T plus del V upon del T, and D del H upon del T minus del T upon del T minus del V upon del T. ठीक है? Suppose these are four options, then you have to tell which one is the correct one. कौन सा correct? Which one is the correct? अब अगर तुम्हारी बात होती कि हैमिल्टनियन को हमेशा t plus v लिखते, then this one must be correct, है ना? So you have this equation, del H upon del T is equal to minus del L upon del T. ठीक है? Del H upon del T is equal to what? Minus del L upon del T. And this value is, and Lagrangian is always T minus V. Always. Lagrangian is always T minus V.
बट हैमिल्टोनियन की कोई गारंटी नहीं है कि उसे आप टी प्लस भी लिखो ही लिखो। क्लियर हो गया? सो ये जो मिथ है सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी लिख करके मोमेंटम को चेंज करने का, उस मिथ को क्या करना है? हटाना है। ठीक है, क्या रहा आंसर? दैट इज माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। विच वन इज द करेक्ट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपके अनुसार चीजें चल रही होती तो कौन सा करेक्ट आंसर होता? तो ऑब्वियसली ए करेक्ट आंसर होता है ना। दिस इज, ये कब होता? जब हैमिल्टोनियन इज नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम, तब तो वो अपने आप जीरो हो जाता। तब आप कुछ भी लिखो क्या फर्क होता है, ये पार्ट तो जीरो ही हो जाता है ना। इसमें दोनों माइनस, सॉरी, वन इज माइनस अनदर इज प्लस। ठीक है, सो दिस विल बी योर हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम। सो मिथ समझ में आ रहा है कहां पर है? ठीक है, दिस इज नॉट अ सो सिंपल फंक्शन। अब आप एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉम्प्लेक्सिटी में आ रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये इतना सिंपल चीज नहीं है जो आप समझ रहे हो। अब आप सारा चीज फेज स्पेस में करने की कोशिश कर रहे हो और वहां पर चीजें बिल्कुल ही चेंज हो सकती है। Up to Lagrangian, it's okay. You can see the geometry and you can solve each and everything. But once Hamiltonian start and your physics is going to deliver into Hamiltonian mechanics, the thing is entirely going to change. ठीक है, कल की क्लास में हम देखेंगे कि कितना ज्यादा चेंज हो जाता है चीजों में। ठीक है, सो इन जनरल हैमिल्टोनियंस आपके एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, यू हैव टू राइट द हैमिल्टोनियन, एंड सेकंड, हैमिल्टोनियन की इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड मेनली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप यहां पर कैसे चेक कर सकते हो? यू कैन चेक ओनली इट इज वेदर इट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम और नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम। if it is not explicit function of time, then partial derivative is equal to what? Total derivative। तो आप वहां इजिली बोल सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं कह सकते थे, है ना। ये हमने प्रूफ करके देखा है कि टोटल डेरिवेटिव ऑफ हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू व्हाट? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हैमिल्टोनियन। तो जाकर के कह पा रहे हैं। एग्रीड? सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सो अब हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, सो जब भी हैमिल्टोनियन हो ये गलती मत करना कि सिंपल काइनेटिक एनर्जी लिखा, पोटेंशियल एनर्जी लिखा, उसे मोमेंटम में चेंज कर दिया। ठीक है, वो क्वेश्चन आज से 15 साल पहले आते थे। अब हैमिल्टोनियन के एक भी क्वेश्चन वैसे नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन में गेस भी करवाऊंगा और आप देखना आप गलत गेस करोगे इन जनरल। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर सम बेसिक प्रॉब्लम। पहले तो एक आज सिंपल प्रॉब्लम करते हैं और कल फिर इसको कंप्लीट करेंगे डिफरेंट टाइप्स के अच्छे प्रॉब्लम से। ओके, सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं। इफ लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम इज हाफ m r dot square r square theta dot square minus half k r square। ठीक है, so this is your Lagrangian of a system। what you have to do, you have to write the Hamiltonian of a system। ठीक है, हमें Hamiltonian लिखना है। now what is generalized coordinate here? r and theta। so your generalized coordinate q1 is equal to r, q2 is equal to theta। आप जो पहले किए उसे भूलना नहीं है। ठीक है, and what is your Hamiltonian? Hamiltonian will be function of qi, pi and t। ठीक है, and this will equal to summation over qi dot pi minus Lagrangian of a system। ठीक है, this will be equal to qi dot pi minus Lagrangian of a system। so इसे जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? r dot pr, ओके, r dot pr। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? समेशन ओवर आई है, मतलब कितनी बार इसको सम ऑफ करोगे? जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ठीक है, सो दिस इज r डॉट पी आर प्लस थीटा डॉट पी थीटा। ठीक है, r डॉट पी आर थीटा डॉट पी थीटा। ठीक है,
minus Lagrangian of a system. So Lagrangian is half m r dot square r square theta dot square minus half k r square. क्लियर है ये? नाउ यहां पर ऐसा कोई टर्म होगा क्या, r डॉट p थीटा का टर्म? नवीन, कोई ऐसा टर्म होगा r डॉट p थीटा का टर्म? नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्जुगेट वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ओनली कॉन्जुगेट वेरिएबल का टर्म होगा। सो क्या मैं इसे हैमिल्टोनियन कह दूं गरिमा? इसे हैमिल्टोनियन कह दूं नवीन? नहीं। क्यों? क्योंकि इसे हमें r डॉट को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सो हैमिल्टोनियन लिखने के लिए लैग्रेंजियन बहुत जरूरी है। बिना लैग्रेंजियन के आप हैमिल्टोनियन नहीं लिख सकते हो थ्योरेटिकली। अब आप अपने आप को स्मार्ट समझो, बहुत स्मार्ट हो इसलिए जल्दी लिख लेते हो, बट थ्योरेटिकली यू कैन नॉट राइट हैमिल्टोनियन विदाउट राइटिंग लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर लैग्रेंजियन। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यूज दिस लैग्रेंजियन। हमें किसे किसे रिमूव करना है, r डॉट थीटा डॉट को रिमूव करना है। ठीक है, सो कैसे रिमूव करेंगे r डॉट को, डेल l अपॉन डेल r डॉट इज इक्वल टू पी आर, लिख सकते हैं ना? सो व्हाट इज डेल l अपॉन डेल r डॉट, m r dot is equal to pr, so r dot is equal to pr upon m। लिखो भाई, कर क्या रहे हो? And then you can go for del l upon del theta dot is equal to p theta। ठीक है, what will be that value, m r square theta dot is equal to p theta। So what is theta dot, p theta upon m r square। ठीक है, दिस इज, ये ब्रैकेट में रहेगा। एग्रीड? अब आप क्या करोगे, इन सारे चीज को यहां पर पुट करोगे। तो पुट करोगे तो क्या होगा, आर डॉट की वैल्यू क्या लिखें, पी आर अपॉन एम पी आर। ठीक है, माइनस थीटा डॉट की वैल्यू क्या लिखें, पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर पी थीटा। वेरी गुड। माइनस हाफ एम आर डॉट स्क्वायर को क्या लिखें, पी आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ठीक है, माइनस हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट को क्या लिखे, थीटा डॉट स्क्वायर को पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, हाफ के आर स्क्वायर। क्लियर है ये? अब आप इसको अच्छे ढंग से लिख सकते हो, आर पी आर वाले को एक साथ ले जाओगे, पी थीटा वाले को एक साथ ले जाओगे। सो आई थिंक योर आंसर विल बी हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 2m, ये दोनों आ गया, 1m इज कैंसिल, प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन 2 mr स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज योर हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम। नाउ वी हैव टू गो फॉर व्हाट, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, एक प्रॉब्लम में सारा चीज कर लेते हैं, फिर अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग चीज करेंगे। ठीक है, ओके, so let's go for Hamiltonian equation of motion। So when we will go for Hamiltonian equation of motion, by the way, अगर n number of generalized coordinate है तो कितने number of Hamiltonian equation of motion होंगे? If there is n number of generalized coordinate, how many number of Hamiltonian equation of motion? टू n पक्का? n 2n 2n plus 1 2n minus 1, ये चार ऑप्शन है, क्या होगा? If there are n number of generalized coordinate, then how many number of Hamiltonian equation of motion?
क्या होगा 2n+1, है ना? क्यों? एक टाइम वाला फैक्टर भी तो होगा, ठीक है? सो n नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए 2n+1 नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन मिल रहे हैं भाई। आप सोच रहे हो कितनी एब्स्ट्रैक्ट चीजें हो गई? एग्रीड और नॉट? टाइम का फैक्टर है तो, अगर टाइम का फैक्टर नहीं है तो फिर 2n नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो सकता है, बट यू हैव टू इंक्लूड टाइम, सो यू हैव 2n+1 नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। यहां पर कितने नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं? 2। तो कितने नंबर ऑफ इक्वेशन होने चाहिए? 4 होने चाहिए या 5? 5 होने चाहिए। वहां पर एनर्जी कांस्टेंट आ जाएगी, दैट इज डिफरेंट, बट होगा तो, सो दैट इज व्हाट 5 नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। सो क्या क्या होगा वो देखो। फर्स्ट, del H upon del R is minus PR dot, ठीक है? del H upon del R is what? Minus PR dot. So del H upon del R की वैल्यू क्या हो जाएगी? P theta square upon MR cube माइनस साइन ये कर रहे हैं, ठीक है? प्लस KR is minus PR dot, ठीक है? एक इक्वेशन हो गया। दूसरा, del H upon del PR is equal to R dot, ठीक है? So what will be this equation? PR upon M is equal to R dot, ठीक है? Okay. Next we are going for third equation. So ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। del H upon del थीटा क्या आ रहा है? del H upon del थीटा है 0, that value is minus p theta dot which is 0, है ना? यहां से क्या आ गया? p theta is constant, यानी एंगुलर मोमेंटम आपका फिर से कंजर्व आ रहा है, बिकॉज थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, सो अगेन यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है? देन del H अपॉन del p थीटा, ये क्या हो रहा है? ये वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा डॉट, सो दिस वैल्यू इज p थीटा अपॉन mr स्क्वायर, ठीक है? सो del H अपॉन, यहां से डिफरेंशिएट करो, ठीक है? सो दिस इज p थीटा अपॉन mr स्क्वायर, क्लियर है? सो कितने इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए अभी? 4 हो गए। एक बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है? del H अपॉन del T, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। दिस इंप्लाइज dH अपॉन dt इज इक्वल टू 0, ठीक है? सो यहां से आप कह सकते हो H इज कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है ये आपको नजर आ रहा है क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है? ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है? सो ये आपको विजुलाइज करके पता चलेगा। नाउ लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज मीनिंग ऑफ del H अपॉन del Q इज इक्वल टू माइनस पी आई डॉट। इसका मतलब क्या है? ये किस चीज को बता रहा है? फोर्स को। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? न्यूटन्स लॉ। दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? न्यूटन्स लॉ, ठीक है? क्लियर है ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है? न्यूटन्स लॉ के बारे में। सो आप एग्जैक्टली न्यूटन्स लॉ के इक्वेशन यहां से आपको मिल जाएंगे।
डेल एच अपॉन डेल क्यू आई इजकल टू माइनस पी आई डॉट। ठीक है, एफ इजिकल टू एम ए के बारे में ही बात करेगा, आप यहाँ चेक कर लो। पी आर को क्या लिख सकते हो, एम आर डॉट, और उसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस पी थीटा स्क्वायर एम आर स्क्वायर प्लस के आर इज इक्वल टू माइनस एम आर डबल डॉट। ठीक है, और पी थीटा क्या है, कंजर्व है, यहां से देख लो पी थीटा क्या है, कंजर्व है। सो ये सी अपॉन सम कांस्टेंट, सो दिस विल बी कांस्टेंट एंड दिस इज जस्ट लाइक अ न्यूटन्स लॉ, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सो दिस विल बी जस्ट टेल यू अबाउट द न्यूटन्स लॉ। यहीं से आप साइक्लिक कोऑर्डिनेट की भी बात कर सकते हो, है ना। साइक्लिक कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, डेल एच अपॉन डेल क्यू आई इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका क्या मतलब है, पी आई डॉट इज इक्वल टू 0, विच मीन्स पी आई इज कंजर्व। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं दिस इज योर साइक्लिक कोऑर्डिनेट, पी थीटा क्या है आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो जो जो इंफॉर्मेशन आपको लैग्रेंजियन से मिले थे वो सारे इंफॉर्मेशन आपको हैमिल्टोनियन से मिल रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ आप देख सकते हो नेक्स्ट, ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या बताता है, डेल एच अपॉन डेल पी आई इज इक्वल टू व्हाट, क्यू आई डॉट, है ना। This information will tell you exactly same information which is given by del L upon del QI dot is equal to PI। ठीक है, यहां से दोनों क्या है, सेम इंफॉर्मेशन आपको बताए जा रहा है। क्लियर है ये, सो दिस इज सेम इंफॉर्मेशन जो आपको मिला हुआ है ना। तो जो भी आपने लैग्रेंजियन में इंफॉर्मेशन गेट किए थे वो सारे इंफॉर्मेशन हैमिल्टोनियन में मिल रहे हैं। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, टोटल एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, कि वेदर योर टोटल एनर्जी इज कंजर्व और नॉट। ठीक है, सो दिस इज योर हैमिल्टोनियन ऑफ अ सिस्टम। सो दिस इज बेसिकली फॉर्मुलेशन ऑफ हैमिल्टोनियन। कल की क्लास में हम लोग फर्स्ट पार्ट में से प्रॉब्लम करेंगे एंड देन हैमिल्टोनियन का जो एक्चुअल यूज होगा वो पॉइजो ब्रैकेट के साथ क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, एग्रीड। सो कल हम लोग फिर से देखेंगे इस हैमिल्टोनियन का, कल बेसिकली यूज देखेंगे कल। ठीक है, सो कल मोस्ट प्रोबब्ली दोनों क्लास मेरी होगी, मैथमेटिकल की क्लास नहीं होगी। हम फर्स्ट पार्ट में हैमिल्टोनियन का प्रॉब्लम करेंगे और सेकंड पार्ट में पॉइजो ब्रैकेट को करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्लास कल मेरी होगी। क्लियर है ये?